जय मसीह की। I greet you in the most precious of Lord and Savior Jesus Christ. और मैं परमेश्वर के अद्भुत नाम में आप सभी का अभिवादन करता हूँ। How are you all? और आप सब कैसे हैं? Once again, God given this chance to come before you. और परमेश्वर ने एक और बार मुझे सुंदर सा अवसर दिया कि मैं आपके साथ जुड़ सकूँ। Today, for translation, I brought Amit. और आज मैं ट्रांसलेट करूँगा। It's a wonderful privilege. और ये बहुत ही अच्छा अवसर है मेरे लिए। So I thank God for that. और मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। Today, I'm going to share God's words, a promised word. और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वादे का वचन। My message is obedience to God. और आज का संदेश परमेश्वर की आज्ञा को मानना। We're going to turn our Bible, Deuteronomy chapter 8. और हम आज व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में कुछ पदों को देखेंगे। All the chapter I took to explain about obedience. और पूरे अध्याय मैंने लिया है कि मैं उसको आपको बताऊं आज्ञाकारिता के बारे में। Here, the obedience is more important in our life. और यहाँ पे आज्ञा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Moses said to the new generation. और मूसा नई पीढ़ी को बताता है। Here, Moses is giving to us about don't forget what God commanded to us. मूसा ने यहाँ पे दिया है कि परमेश्वर की आज्ञा को मत भूलो। If you are forgetting God's commandments to worship the idols, you will definitely perish. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे और मूर्ति पूजा की जो उनकी आज्ञा है उनको मानोगे, निश्चय ही आप नाश किए जाओगे। So I will read for you verse 1. और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। The whole commandments that I commanded you today, you shall be careful to do, that you have and may live and multiply and go in your possessions the land that Lord God has sworn to you give your fathers. You have to very be careful to do what God commanded. और तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ परमेश्वर की आज्ञा को करना है। And that you may live a long life. और तब आप एक बहुत ही उत्तम जिंदगी जियोगे। Don't forget your God. अपने परमेश्वर को मत भूलो। And we need obedience in our life. और हमें आज्ञा जरूरी है हमारे लाइफ में। If you are obeying God, He may test you. He may check your character. यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, वो हमें परीक्षा करेगा और हमें आगे की ओर बढ़ाएगा। Whether you are obeying God's word or not, He may check you. He may find out you. हमें परीक्षा करेगा और वो हमें ढूंढेगा। Here, the new generation is there. और यहाँ पे एक नई पीढ़ी को देखते हैं। The new generations, Moses saying that we have to must obey God. और नई पीढ़ी को मूसा बताता है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। He is speaking to them that do you know what God did in your fathers? और मूसा नई पीढ़ी को कहता है क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या किया। And God did a great things. He did 40 years. He feeded your fathers. और परमेश्वर ने बहुत ही महान कार्य किया हमारे पुरखाओं के साथ 40 वर्ष तक। And if you are that God, if you are not worshipping, you are worshipping idols, then God will definitely punish you, and you will never enter into the promised land. और उस परमेश्वर को आप उस परमेश्वर को आप आराधना नहीं करोगे और मूर्ति पूजा करोगे, परमेश्वर आपको निश्चय ही आपको नाश करेगा। We have to obey God's word. हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना And चाहिए। we have to obey the voice of the Lord. और हमें परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना चाहिए। And here, mainly my focus and my I want to bring before you to the point is obedience. और यहाँ पे मैं आज एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमें आज्ञाकारिता को मानना चाहिए। Obedience we have to do two things. और आज्ञा
हमें आज्ञा में दो कार्य करना है। First one, we have to hear, and second one, we must do. और पहली बात हमें सुनना है और दूसरी बात हमें करना है। If you did these two things, then you can obey. और आप इन दो बातों को करोगे तो आप परमेश्वर किसी भी आज्ञा को मानोगे। I will give you an example. और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। If I am a doctor यदि मैं एक डॉक्टर हूँ and Amit become a patient, और मैं एक मरीज बन गया, so I came to him and I am saying that, brother, I studied engineering, I will give you injection. और अभिषेक भाई मेरे पास आएंगे और ये कहेंगे कि मैं आपको एक इंजेक्शन देना चाहता हूँ। So then immediately one question come to his mind. और तुरंत ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाएगा। What that question? और मैं उस समय क्या क्वेश्चन करूँगा? He will ask me, are you doctor? और मैं अभिषेक भाई से पूछूंगा क्या आप एक डॉक्टर हैं? No, do you know how to injection? क्या आप जानते हैं कि इंजेक्शन कैसे देना है? This type of questions will come to mind in his mind. और इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का पर्सन मेरे दिमाग में आएगा। But if Amit will go to a doctor in Alwar, और यदि मैं इन अलवर में कहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, if he doctor saying that I will give you injection, और डॉक्टर मुझे कहेगा कि मैं आपको एक इंजेक्शन देता हूँ, Amit will ask to doctor, do you know? क्या मैं उस समय डॉक्टर से पूछूंगा कि आप जानते हैं? He will not ask, मैं उस समय नहीं पूछूंगा, but he will say you give injection immediately. और मैं अपना हाथ उन्हें दूंगा कि यहाँ पे आप इंजेक्शन लगाइए। So when I said you don't have faith, और जब मैंने कहा तो उस समय मेरे पास कोई विश्वास नहीं था and he has doubt in his mind. और उस समय मेरे दिमाग में एक संदेह था। But if he went to doctor saying I will give you injection, he will say yeah, give me immediately. और जब मैं डॉक्टर के पास गया वहाँ पे डॉक्टर ने कहा मैं एक इंजेक्शन आपको देना है, उस समय मैंने अपने हाथ को दिया, उस समय वो डॉक्टर ने दिया। And Amit will not ask why hey, do you know how to injection, and he will not ask, he have faith. और उस समय मैं डॉक्टर से नहीं पूछूंगा कि आपको इंजेक्शन देना आता है कि नहीं, क्योंकि उस समय मेरे अंदर विश्वास आ गया। What he will do, he will hear and he will do that all things whatever doctor says. और उस समय मैं क्या करूँगा? उस समय मैं सुनूंगा और मैं करूँगा। That is the obedience. और यही एक आज्ञाकारिता है। Obedience means you will not ask any question, any information. आज्ञा का मतलब कि आप कोई क्वेश्चन या पर्सन नहीं पूछ सकते, But you will do that immediately. कि आप तुरंत ही उस कार्य को करेंगे। So that is what today I wanted to say. और यही मैं आपसे बांटना चाहता था। We have knowledge, but we don't have obedience. हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं। We might know everything, but we will not obey. और जो हमारा दिमाग है सब कुछ जानता है लेकिन हम आज्ञा नहीं पालन करते। One who shows obedience, और जो आज्ञाकारिता को दिखाता है God's possessions will a long time with him. और परमेश्वर उसको बहुत ही लंबे समय तक ले जाता है। Moses made focus on this chapter one point. मूसा ने एक ही बात को इस पे ध्यान दिया है, My children, मेरे बच्चों obey God. परमेश्वर की आज्ञा को मानो, You will get your land a long time. और तुम अच्छे भूमि को बहुत ही लंबे समय तक मिलेगा। So you must obey what God commanded. और तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को जरूरी मानना है कि परमेश्वर कहता है। If you are not obeying God's commandments, और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते and you will be perished, और आप नाश किए जाओगे, and God will not take care of you. और परमेश्वर आपको ध्यान नहीं रखेगा। We should obey. हमें आज्ञा को मानना चाहिए। Even today also, we should obey. और आज भी हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। When you are obeying God's word, He will take care of us. जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे वो हमारी देख रेख करेगा। One who obeys God's, he will not worry about anything. जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो बिल्कुल
किसी बात की भी चिंता नहीं करता Obedience is more important in our life. और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Obey आज्ञा को मानो and His commandments, and we may long that. और उसके आज्ञा को मानो, तब वो लंबे समय तक ले जाएगा। I think you understand this message. In this short message, God's name be glorified. और मैं समझता हूँ आप इस संदेश को समझ गए हो और इस छोटी सी मैसेज से परमेश्वर की नाम महिमा हो। Amen. आमीन।